working. Unlike Alco locomotive में जो alternator हमने use किया है, that was at least alternator में 4 कार्बन ब्रश तो होता ही था. But here we see brushless 3-phase traction alternator driven by diesel engine. So someone has kept his mic on and is speaking to someone else. This is disturbing all. Please see this. Now see how this traction alternator is brushless and how it is working. First we will know that. इसमें ट्रैक्शन अल्टरनेटर के हाउसिंग के अंदर में there are 2 alternators. One is your traction alternator main and other is your exciter. This is also AC alternator exciter. Now what happens? This exciter is carrying with it a rotating rectifier. Now say we can say like this. Here is the exciter and here is the TA, traction alternator. Both are having rotors. इसमें रोटर जो है वो आर्मेचर है. दो इट इज ए अल्टरनेटर एसी मशीन, बट डीसी मशीन के तरह इसका आर्मेचर रोटर है और ये तो एसी मशीन है इसलिए इसका फील्ड जो है वो रोटर है. नेक्स्ट स्टेटर. किसी भी रोटेटिंग मशीन में जनरेटर हो या मोटर हो उसमें एक स्टेटर होगा एक रोटर होगा. मेनली मैक्सिमम केसेस में देखा जाता है जो एसी मशीन है अल्टरनेटर स्पेशली अल्टरनेटर्स में फील्ड इज द रोटेटिंग मेंबर, फील्ड इज द रोटर एंड आर्मेचर इज द स्टेटर. दिस इज ऑल्सो अल्टरनेटर बट इसका स्ट्रक्चर को चूंकि हमको ब्रशलेस बनाना है इसलिए इसके आर्मेचर को रोटर बना दिए हैं और फील्ड को स्टेटर बना दिए हैं. See how it is possible. I will show you the diagram also. See ये जो बॉडी देख रहा है ना, this is the ट्रैक्शन अल्टरनेटर बॉडी. उसके साथ देखिए ये एक्साइटर का फील्ड जो है इसके आर्मेचर का जो फ्रेम का जो बॉडी है उसके साथ में ये फिक्स्ड कर दिया गया. ये फील्ड है. दिस इज फील्ड वाइंडिंग. ये मैग्नेटिक पोल्स है ना फील्ड वाइंडिंग. एंड दिस इज द स्टेटर ये एक्साइटर आर्मेचर व्हिच इज a rotating member on the same shaft, mounted on the same shaft. मतलब ट्रैक्शन अल्टरनेटर का फील्ड और इसका आर्मेचर एक्साइटर का एक ही शाफ्ट पर है. और दिस इज द रोटेटिंग रेक्टिफायर. देखिए 3 डायोड इस साइड में है, 3 डायोड्स एंड 3 डायोड्स आर ऑन दिस साइड. सो दिस 6 डायोड्स constitute a rotating rectifier that is converting the AC generated by this armature into DC supply. So in this way we see our exciter is having a armature rotating member and field as a stator, and our traction alternator has field as rotating member and armature as stator. Now there is a rotating rectifier also here. Rectifier, it is also rotating with the armature. This rectifier is rotating rectifier with this armature. So you see this armature, this rectifier and this field are rotating at the same time on the same shaft or same axle. And while rotating, what happens? See, this field is stationary. Exciter field में आपने बैटरी से सप्लाई दे दिया
You have given DC supply from battery. So what happens? This field is excited, magnetized हो गया pole इसका. इसके अंदर में ये armature है. Now the armature is rotating due to the rotation of the engine crankshaft. Engine crankshaft coupled है armature के इसके साथ, traction alternator के साथ. So ये field, ये armature and this rotating rectifier, all three are rotating. Now this field, when supplied with battery power, it is magnetized. Now this armature will start generating electricity. It is generating three phase AC. थ्री फेज एसी बना के किसको दिया भाई? इस रेक्टिफायर को दिया. इसने इसको डीसी बनाया. नाउ दिस डीसी while rotating it gives the DC to the field of the traction alternator which is also rotating. So no need of carbon brush. While rotating all actions have done. यहाँ ये excited हो गया field. Now as soon as this field gets excited and it is rotating, what will happen? The armature inside the field, outside the field, will start generate three phase AC. This is the principle of brushless alternator. Could I explain it? You got it? No carbon brush is needed here. While rotating, the exciter armature generates three phase AC and gives it to the rotating rectifier. The rectifier converts it into DC and it gives this DC supply to the field of the traction alternator in a rotating stage. So the field gets excited and the armature of the TA now starts generating three phase AC without the use of any carbon brush. So this is called brushless three phase traction alternator. Okay. Now the output of this traction alternator is given to a rectifier. This rectifier is just अंडरस्लंग है. ये रेक्टिफायर कहाँ है? अंडरस्लंग हमने दिखाया था आपको. अंडरस्लंग कंपार्टमेंट में रखा हुआ है. वहां पर ये रेक्टिफायर क्या करता है? ब्रिज रेक्टिफायर थ्री फेज एसी को डीसी में रेक्टिफाई करता है. एंड दैट दिस डीसी output is given to the four traction motors, axle mounted traction motors, self ventilated traction motors, and these traction motors, two in each bogie, दो bogie में चार मोटर लगे हैं. तो वो फिर wheels को rotation देते हैं through their pinion and bull gear of the wheels. So in this way the mechanical gear drive is transmitted to the axle. Now we will discuss about the rotating machines, not in details, just there is a traction alternator that I already discussed what it is doing. The traction alternator is just converting the mechanical energy of the mechanical horsepower of the engine into electrical horsepower. Then comes the traction motor. It is converting the electrical horsepower of the alternator into mechanical work done. Now there is an auxiliary alternator. I have already spoken about this. This auxiliary alternator does two works. One is it is three works. One is it is charging the onboard batteries of 110 volt. 110 volt battery bank को ये charge करता है. दूसरा क्या है? It gives excitation to the exciter. And तीसरा क्या है? ये control voltage देता है. कंट्रोल सर्किट में वोल्टेज देता है 110 वोल्ट. चौथा क्या है? दिस सप्लाइज पावर फॉर लाइट्स एंड फैंस. लाइट्स एंड फैंस. नाउ देयर इज ए 24 वोल्ट अल्टरनेटर. ये स्टार्टिंग सर्किट में जो 24 वोल्ट का बैटरी लगा है उसको चार्ज करने के लिए. Then there is a rectifier blower motor. You have used a rectifier. ये अल्टरनेटर का थ्री फेज एसी को रेक्टिफाई करने के लिए रेक्टिफायर आपने लगाया है. That needs cooling. So there is a blower for cooling it. Then there are two self starter motors that helps in cranking the engine while starting the engine. These are the
rotating machines we have used. Not go in details because we have to know about the control. So this thing I have already shown कि AC input जो alternator का है वो यहाँ आएगा, यहाँ rectifier है, rectifier में DC बनेगा, then यहाँ से DC output दिखेगा. Now this DC output will go to the traction motors. They are self-ventilated, already discussed in the previous class. Now, in case of 1400 HP demo, we mark the motors numbers as front truck में motor number 1 and then 3, and rear truck में motor number 2 and then 4. It is not 1, 2 and 3, 4. But in 1600 HP demo, we mark it as 1, 2 and 3, 4. Now, in any truck, you can isolate a individual motor if it is giving any problem, or we can isolate a full truck if both the motors of that truck is giving any problem. This is the auxiliary alternator. The purpose I have already discussed, and the auxiliary alternator is having its rectifier unit, because auxiliary 3-phase AC बनाता है. 3-phase AC से तो battery charge करेगा नहीं. It will have to rectify it into 110 volt DC. So it has got a rectifier cum regulator unit, RRU. This is on the other side in the undercarriage. जिस side में आपका main alternator का rectifier है, उसके ठीक other side में ये RR unit लगा होता है. Now these are the starter motors. एक ये है, एक ये है. इसके साथ ये मैग्नेटिक पिकअप यूनिट लगा हुआ है हर एक स्टार्टर मोटर में. This magnetic pickup unit has got 2 coils. One is PU coil, pickup coil, and the second is hold coil. What happens when you supply battery power to this starter motor? First, this PU coil gets supplied, and then a pinion from the motor comes out and it engages with a ring gear which is connected to the crankshaft. Now this ring gear के साथ starter motor का pinion जो है वो mesh कर गया, but it has not got that magnetism कि if the starter motor is rotated, the pinion will rotate the ring gear also, because it will slip due to less magnetism. So एक काम तो हो गया, meshing हो गया PU coil में supply जाने से. Next is this old coil gets supplied. Now it is firmly engaged due to high magnetism. Now motors are rotated. With its rotation, the pinion rotates the ring gear and the cranking takes place. When the cranking speed comes like 350 RPM or so, then the engine starts, and as soon as the engine starts, the crank disconnect action cuts the supply of this PU coil, and the pinion is returned from the ring gear. Otherwise, the pinion will be broken. So this PU coil supply first cuts, then hold coil supply cuts, and now no need of supply. The engine has already started after crank. This is the starting of demo, how it takes place. This is the 24 volt alternator which is charging the starting batteries, belt driven. 24 volt battery box. Actually 3 loco starting batteries of 8 volt each are placed in series in this battery box. So they are connected in series, so they give you 24 volt. This is the 110 volt battery bank, sorry 24 volt battery bank. See, a loco battery is connected in series. This is 110 volt battery bank. You can see these are the batteries which have been connected in series to form 110 volt. 2 types of connection are there.
In one type, there are 18 numbers of batteries, each battery of 6 volt. So the voltage in series will come about 108 volts, 120 ampere hour. Near about 110. And the second arrangement is like this: 6 number batteries are there, and each cell voltage is 2 volt, and every battery cell will contain 9 cells. So 9 to 18 and 18 6 1 G. So these two type of arrangements of batteries are there. Now just in a nutshell, we will discuss the control components, electrical components, so that we can understand the controlling of the engine. See here, you can see 110 volt main switch. Here you will face in demo, there will be two main switches. One is 110 volt main switch and the other is 24 volt main switch. Both the main switches have to be made on because you need somewhere 24 volt supply and somewhere 110 volt. Then see, this is the driver's control stand where you see this is the master controller. Master controller के ऊपर में आपके हैंडल्स जो लगे होते हैं, throttle handle, this is reverser, and there is no dynamic brake. लोको में होता तो एक्सीलेटर हैंडल भी होता है, डेमो में डायनामिक ब्रेक नहीं है. Keep in mind, there is no dynamic braking in demo. So master handle will consist of two handles. One is reverser handle, one is throttle handle. Now you see this throttle handle has got, first one is idle position. Except idle, there are 8 positions from 1 to 8 notch positions. And this reverser handle has got 3 positions. Now it is in neutral. And if you bring it this side, it will come to backward. And if you bring it this side, it will come to forward. Now there is a dead man's knob here, dead man's knob. Dead man's knob is in locomotive. You have heard about the VCD, Vigilance Control Device. Know about this? What does Yes, this sir. VCD do? ये सर अगर 30 सेकंड तक ड्राइवर कोई हरकत नहीं करता है तो ये अलार्म देना चालू कर देता है. 60 सेकंड ड्राइवर अगर कुछ नहीं किया, हाँ सर, तो क्या करेगा ये? एलईडी अलार्म देना. करेगा पहले. हाँ सर. फिर 8 सेकंड तक अगेन ड्राइवर ने कुछ नहीं किया, देन बजर बजेगा. हाँ. अगेन 8 सेकंड तक ड्राइवर ने कुछ नहीं किया, देन ब्रेक लग जाएगा, पेनल्टी ब्रेक. हाँ सर. बट ये VCD हमारा डेमो के अंदर में नहीं है. डेमो में क्या है, देखिए थ्रोटल हैंडल ऊपर की तरफ उठा हुआ है. ड्राइवर जब भी चलाता है तो इस पर दबाव दे करके तब चलाता है, और जैसे ही वो दबाव छोड़ देगा ना ड्राइवर, ऐसे इसके अंदर अगर इस तरह दबाव नहीं दिए रखेगा इसको हॉरिजॉन्टल करने के लिए, जैसे छोड़ देगा, अगर इस पोजीशन में आ जाए तो इसके अंदर में डेड मैन्स वाल्व है. इट विल ऑपरेट एंड इट विल ब्रिंग द डेमो इनटू आइडल कंडीशन, नो पावर कंडीशन में ले आएगा, और साथ में पेनल्टी ब्रेक भी लग जाएगा. सो दिस वर्क्स एज ए VCD. अब इस डेमो में तो ड्राइवर है, वो दबा करके इसको चला रहा है, लेकिन जिस डेमो में ड्राइवर नहीं बैठा वो भी तो कपड़ ढोकर के है, उसमें एक डेमो कटआउट, DMR कटआउट बॉक्स है, इसको ड्राइवर बंद कर देगा. देन देयर विल बी नो डेडमैन्स रिले ऑपरेशन इन दैट that DPC, and that DPC will not come to idle. These are the switches in front of the driver, and this is on his back. These are emergency switches. This is a selector switch for load meter. Load meter, you know, in a locomotive there is a load meter. This load meter is really actually a ammeter. This is connected with traction motor number 1 in locomotive. ट्रैक्शन मोटर नंबर 1 का जो करंट आता है उसी से हम समझ लेते हैं कि बाकी मोटर्स में भी ऐसे ही करंट होगा और मोटर्स हमारा जलने से बच रहा है.
ड्राइवर को एम्पियर नहीं बताया जाता है, उसमें ड्राइवर को जोन बना दिया गया है, कुछ दूर तक ग्रीन जोन बना दिया गया है। यहाँ से ये ग्रीन जोन है, इसके बाद से ऑरेंज जोन है थोड़ा दूर तक, इसके बाद रेड जोन। ड्राइवर को कहा जाता है कि यू ऑपरेट ओनली इन ग्रीन जोन। अगर ऑरेंज जोन में गए भी या रेड जोन में गए, वहां पर सेकंड में टाइम लिखा रहता है कि कितना, सॉरी मिनट में, कितना मिनट तक यहाँ रह सकते हैं, इस जगह रह सकते हैं, इस जगह रह सकते हैं। उस बीच में ड्राइवर को नॉच डाउन करके वापस कांटा को ग्रीन जोन में ले आना है। यहाँ एक कांटा होगा जिसको ऑलवेज ट्राई टू कीप इन ग्रीन जोन। बट इन केस ऑफ डेमू जो लोड मीटर है, उसको एक मोटर से नहीं लगाते हैं, बल्कि दो मोटर से कनेक्टेड रहता है, मोटर नंबर 1 एंड मोटर नंबर 2, और एक सिलेक्टर स्विच दिया हुआ है। अगर इसको आप ऑफ में रखेंगे, सो नो मोटर इज कनेक्टेड टू लोड मीटर। इफ यू पुट दिस स्विच इन वन, then one number traction motor number 1 is connected to the load meter. If traction motor number 1 somehow has become defective and you had to make it dummy, then load meter will not work. जैसे लोगों में काम नहीं करता, एक नंबर मोटर अगर डमी हो गया, लोड मीटर काम नहीं करता है, दिक्कत होता है ड्राइवर को। डेमो में क्या किया गया, एक ऑप्शन रखा गया, ट्रैक्शन मोटर 2 भी उससे कनेक्टेड है, केवल इस सिलेक्टर स्विच को 1 से उठा के 2 में प्लेस कर दिया। तो अब क्या होगा, ट्रैक्शन मोटर 2 से उसको कनेक्शन मिल जाएगा, लोड मीटर विल बी वर्किंग दो द ट्रैक्शन मोटर नंबर 1 हैज बीन पेड। तो ये फैसिलिटी डेमो में है। दोनों ट्रक का एक एक मोटर लिया गया, ध्यान दीजिए। 1 और 3 जो है वो पहला ट्रक में रहता है, 2 और 4 दूसरे ट्रक में रहता है। दोनों ट्रक का या दोनों बॉगी का एक एक मोटर लिया गया है लोड मीटर। दिस इज इंजन कंट्रोल स्विच। ये लोको में भी होता है, लेकिन ड्राइवर का कंट्रोल स्टैंड पर नहीं होता है, लोको में ये होता है फ्रंट पैनल पर। ये ड्राइवर के कंट्रोल स्टैंड पर है। व्हेन यू आर रनिंग द डेमो, देन इसको रन पर रखना है। अभी ये आइडल में है, नाउ इट इज इन आइडल, सो द लोकोमोटिव विल नॉट गेट एनी पावर। कितना भी आप नॉचअप करिएगा, कितना भी जीएफ दे दीजिएगा, कुछ नहीं होने वाला। जब तक इसको रन में नहीं करिएगा, कोई पावर नहीं मिलेगा। तो इसको रन में करते हैं चलाने के पहले, एंड देन जीएफ स्विच दे करके या एक्साइटेशन स्विच दे करके देन नॉचअप करने से देन डेमो विल मूव। Now see, this is the most important component of control circuit. This is the LCC. इसको कहीं कहीं पर लोड कंट्रोल कार्ड कहते हैं, कहीं पर लोड कंट्रोल सेंटर कहा गया है। तो इसमें एक्चुअली दो कार्ड्स है, आप देख रहे हैं, दो मॉड्यूल्स है। एक ये बड़ा वाला मॉड्यूल है लार्जर वन, एक ये स्मॉलर वन। इस लार्जर वन जो है ये आपके स्पीड को कंट्रोल, 8 डिफरेंट स्पीड देता है आपको कंट्रोलिंग के लिए। हर एक नॉच पे एक अलग अलग स्पीड देता है। And irrespective of load, by increasing or decreasing fuel flow, it maintains the notch speed. ये गवर्नर का काम करेगा उस समय। ये बड़ा वाला पोर्शन जो है ये स्पीड कंट्रोल करता है, और ये स्मॉलर जो पोर्शन है, छोटा वाला पोर्शन, ये एक्साइटेशन कंट्रोल करता है मेन अल्टरनेटर का। We will see how it does, we'll discuss. Then there is a breaker which gives supply to this governor. This is located just above LCC governor on the back panel. LCC governor के ठीक ऊपर में एक ब्रेकर लगा हुआ है। Then these are the switches given to the driver. Mainly दो स्विच उसको ऑन करना होता है, एक ये एक्साइटेशन स्विच है और एक ये कंट्रोल स्विच है। इसलिए दोनों को अलग कलर कर दिया गया। इसको जब तक नहीं देंगे पावर नहीं मिलेगा। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट की। इसको खोल के ले जाता है ड्राइवर, या ड्राइवर को शेड से दिया जाता है, या जहां भी ड्राइवर लेता है गाड़ी को चलाने के लिए। दिस इज कॉल्ड बीएल की। बीएल की ये बीएल की यहाँ पर ग्रुप बना हुआ है। और ये बीएल की एक्चुअली आप ऐसा देख रहे हैं, ये देखने में ऐसा है, ये जैसे ऐसा एक तरफ तो इसका हैंडल हो गया ये वाला, दूसरी तरफ क्या है, ये हैंडल जो इसमें लगा है ये इस तरह से ये लंबा सा, और यहाँ पर एक ग्रुप बना हुआ है। ये पूरा चीज जो है यहाँ पर एक होल बना हुआ है, उसमें डाल करके फिर इसको प्रेशर दे करके फिर इसको घुमा दिया जाता है, मतलब ऑन हो गया।
ये बीएल की ऑन कर देने से क्या होता है, बैटरी का सप्लाई इस पैनल में आना शुरू हो जाता है। क्लियर है बीएल की के बारे में? जब तक बीएल की नहीं लगाएंगे इस पैनल में सप्लाई बैटरी का आएगा नहीं, कंट्रोल सप्लाई आपको मिलेगा नहीं, गाड़ी चलेगी नहीं। ब्रेक लिंक की, नाउ देयर आर सम जनरल पर्पस रिलेज इन डेमो। देयर इज एक्साइटेशन कंट्रोल रिले। ये कब काम करेगा? जब एक्साइटेशन वाला जो स्विच आपको हमने दिखाया उसको ड्राइवर ऑन कर देगा, नाउ इट कम्स इनटू पिक्चर फॉर एक्साइटेशन कंट्रोल, ये ऑन हो जाए। देयर इज ए कट आउट रिले for any reason, if any safety operates and that safety requires कि पावर कट ऑफ हो जाए, नो पावर हो जाए इंजन, then ये रिले कट आउट रिले will pick up and the no power situation will come. Now there is a driver function release relay, DIR। ये गार्ड लास्ट में बैठा है, सामने वाले में फ्रंट में डीपीसी में ड्राइवर बैठा है, दोनों सिग्नल एक्सचेंज करते हैं, दोनों एक दूसरे से कंफर्म होकर के तब गाड़ी को चलाना शुरू करते हैं। तो ड्राइवर इंडिकेशन जब देता है, दिस रिले पिक्स अप एंड गार्ड गेट्स द इंडिकेशन कि ड्राइवर इज रेडी टू ड्राइव, देन गार्ड गिव्स द इंडिकेशन फ्रॉम देयर एंड ड्राइवर गेट्स हिज ditto to run the train, then starts running. Then there is a unit fault relay. This relay picks up when there is any fault in the unit and the driver sitting on the front DPC comes to know that which DPC, which unit has a fault. Then there is a rectifier cooling failure, ये L है, this is cooling failure relay. रेक्टिफायर ब्लोअर लगा हुआ है, रेक्टिफायर में वो अगर खराब हो गया, बंद हो गया, then there is a relay will pick up and you will not get any power. You will get indication rectifier cooling failure and not get any power. So if you want to run the train without rectifier blower, then you will have to make it dummy. There is a provision, there is a switch in the under gear, वहां जाकर के आप इसको डमी कर सकते हैं। And actually we have already an experience of running a DPC or few DPCs without rectifier blower. Rectifier blower fail हो गया, हम लोगों को मिला नहीं, बिना रेक्टिफायर ब्लोअर का, मतलब उसको डमी करके हमने 2 साल तक चलाया, कुछ नहीं हुआ, हमारा रेक्टिफायर चला नहीं। Then there is a safety relay. Safety relay operates जब भी कोई बजर बजने वाली बात होगी, कोई भी सेफ्टी ऑपरेट हुआ, उसमें जैसे हॉट इंजन बजर बजेगा, एलईडी जलेगा, तो बजर जब भी बजना होगा किसी भी सेफ्टी में, तो सेफ्टी रिले विल पिक अप एंड बजर्स विल रीड। देयर ऑक्सिलरी अल्टरनेटर फेल्योर रिले, इट इज इंडिकेटर ऑफ ऑक्सिलरी अल्टरनेटर फेल्योर। एलईडी जलेगा जब ये रिले पिकअप करेगा, ड्राइवर को पता चलेगा ऑक्सिलरी अल्टरनेटर इज नॉट वर्किंग। Then there is a ground relay, already you know कि what is the purpose of ground relay। आप अल्टरनेटर का पावर को दे रहे हैं मोटर को, इस बीच में अगर बॉडी कहीं ग्राउंड हुआ है तो बॉडी से होते हुए वो अर्थ में पावर जाएगा, तो उसका लिमिट है 400 मिली एम्पियर से ज्यादा पावर अगर अर्थ में जाने लगेगा तो दिस रिले विल ट्रिप एंड नो पावर सिचुएशन इज विल कम। 400 मिली एम्पियर फ्रॉम लाइन टू न्यूट्रल, लाइन टू लाइन वोल्टेज अगर आप नापना चाहेंगे तो 800 मिली एम्पियर पर ये ट्रिप करेगा। Now there is a overspeed trip and this is fitted in the LCC that I have shown you। LCC गवर्नर जिसमें 2 कार्ड था, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। एक बड़ा वाला कार्ड में देखिए ये एलईडी लगा हुआ है, जैसे ही ओएसटी ऑपरेट होगा 2000 पर ओएसटी सेट रहता है, 2000 आरपीएम पर, 2000, ताकि 1800 आरपीएम तो आपका 8 नॉच का है,
2000 आरपीएम से जैसे ही एक भी ज्यादा हो जाएगा, 2001 भी हो जाएगा, ओएसटी विल ट्रिप एंड इंजन विल बी शट डाउन एंड ये एलईडी जलेगा, ड्राइवर को पता चलेगा कि ओएसटी ट्रिप कर। नाउ व्हाट द ड्राइवर विल डू, इट विल ही विल रीसेट फ्रॉम हियर। एंड ये आपको इतना बड़ा होल दिखाई दे रहा है, एक्चुअली ये इतना छोटा होल है कि डॉट पेन से, देखिए डॉट पेन का जो बॉल पेन का जो बॉल है उससे इसको रिसेट करना पड़ेगा। प्रेस जेंटली एंड रिसेट। ये कंपोनेंट को समझना जरूरी है। दिस इज सप्लाइड बाय Cummins, दिस इज engine control panel. It has got several switches and breakers. See, these are the two breakers, one is 24 volt breaker and one is 110 volt breaker. Both of these has to be made on for supply of 24 volt and 110 volt to come in this panel. Now this panel consists of, see, these 4 push buttons. What are these 4 push buttons? But with these 4 push buttons, you see here is a selector switch. And this selector switch, let me see, this is the clear picture of this panel. This selector switch, actually switch draw गिर गया है जब मैंने फोटो लिया था, यहाँ पर एक selector switch होना चाहिए. If it is in off position, you have kept it in off position, then you cannot start or stop the demo from here. Then you will have to start or stop the demo from the driver's control stand. वहां भी 2 स्विच स्टार्ट स्टॉप का दिया हुआ है. बट इफ यू पुट इट, इफ यू पुट इट इन ऑफ, नाइदर ड्राइवर के कंट्रोल स्टैंड से स्टार्ट होगा नॉर यहां से कहीं से स्टार्ट नहीं होगा. इफ यू पुट इट इन रिमोट, देन ड्राइवर कंट्रोल स्टैंड से स्टार्ट होगा, यहां से नहीं होगा, इस पैनल से नहीं होगा. एंड इफ यू पुट इट इन लोकल, then we can start the DPC from here. And for starting the DPC from here, you will have to push this push button for starting. Now see, this is for start, this is for stopping. When you have selected the selector switch to local position, you will start it from here. If you want to stop it, you will stop it from here. But what for these 2 buttons? This button test is, if you push this test button, all these LEDs will glow. That will indicate that all the LED indicators, कभी लो लूब ऑयल का है, लो हाइड्रोलिक ऑयल लेवल का है, हॉट इंजन का, यहाँ पर डिफरेंट LEDs है. तो ये सारे LEDs आर वर्किंग, नन ऑफ देम आर फ्यूज. सो ये टेस्ट के लिए है, ये टेस्ट पुश बटन. नाउ देयर इज ए रीसेट पुश बटन. फॉर दिस हमको जानना पड़ेगा कि इस पैनल के जब ये स्क्रूज खोल देंगे आप, इसको जब खोलेंगे तो इसके अंदर में एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल कार्ड है, ECC, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल कार्ड. नाउ दिस इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल कार्ड में 2 रिले लगा हुआ है. 2 टाइम डिले रिलेज आर देयर, TDRs. एक पहला रिले जो है ये क्या करता है, दिस बाईपासेस दी OPS, ऑयल प्रेशर स्विच, या LLOP, लो लूब ऑयल प्रेशर स्विच, LLOPS, लो लूब ऑयल प्रेशर स्विच. इसको बाईपास कर देगा 15 से 20 सेकंड के लिए, जितना पर आप सेट करें. 15 से 20 सेकंड के लिए बाईपास कर देगा. बिकॉज जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं तब इतना लूब ऑयल प्रेशर तो रहता ही नहीं है उसमें, तो स्टार्ट होने नहीं देगा लो लूब ऑयल होकर के. तो इसको बाईपास करना पड़ता है. 15-20 सेकंड में स्टार्ट होकर प्रेशर डेवलप हो जाएगा, तब तक ये बाईपास कर देगा. ये टाइम डिले रिले जो है, 1 नंबर टाइम डिले रिले, और लोको इंजन स्टार्ट हो जाएगा. दूसरा टाइम डिले रिले जो है, ये क्या करता है, शटडाउन के टाइम एक वाल्व है FSDV, fuel shutdown valve. This FSDV is a safety device. It is just fitted on the PT pump. ये पंप जो है एक्चुअली फ्यूल प्रेशर डेवलप करता है फ्यूल सर्कुलेशन के लिए इंजन के अंदर में. इस पंप के ऊपर में ये FSDV फ्यूल सप्लाई
फ्यूल शटडाउन वाल्व लगा हुआ है, फ्यूल ऑयल शटडाउन। तो ये शटडाउन वाल्व ऐसा है कि एज सुन एज you start the engine, the shutdown valve has a magnet valve. The magnet valve is starts getting supply. Engine जैसे start किए magnet valve में supply चली गई. Now as soon as this gets supply, it pulls a plunger against spring force to make the fuel path open. And जब तक एफएसडीबी में सप्लाई है, फ्यूल का रास्ता खुला है, नोजल से होकर के माने इंजेक्टर से होकर के फ्यूल जाएगा सिलेंडर में, इंजन स्टार्ट रहेगा। लेकिन जैसे ही कोई सेफ्टी ऑपरेट होगा, as soon as any safety operates, this FSDB valve will not get any supply. फर्स्ट इसी की सप्लाई कट जाएगी। Now the plunger which is pulled due to magnetic action against spring force, due to spring force that plunger will again go forward and shut down the fuel path. Fuel path को close कर देगा। Now due to fuel starvation, the engine will shut down, will get shut down. So in this way, this is a safety device for any safety which needs the engine to be shut down. If any safety operates, then this FSDB supply cuts and the engine is shut down due to the fuel starvation. FSDB clear हुआ आपको? FSDB is clear to you? तो हो जाता है। Yes, sir. Okay. Now see, the second time delay relay क्या करता है, इस FSDB को bypass कर देता है 20 सेकंड के लिए। कब? जब आप शट डाउन कर रहे हैं, नॉट बाईपास, 20 सेकंड के लिए इसकी सप्लाई को काट देता है। सेकंड टाइम डिले 20 सेकंड के लिए इसकी सप्लाई को काट देगा, इसलिए आपको स्टार्ट स्टॉप बटन को ज्यादा देर तक दबा के नहीं रखना होगा, एक बार बस दबा दिए छोड़ दीजिए, वो एफएसडीबी पे सप्लाई कट गया है, अपने आप को स्टार्वेशन होकर के इंजन बंद हो जाएगा। सो दीज टू टाइम डिले रिले इसी में लगा है। कहाँ चर्चा कर रहे थे इसके लिए? ये रीसेट बटन क्या है कि समहाउ यू हैव गॉन टू स्टार्ट दिस, आपका स्लिप हो गया, कुछ छूट गया हाथ से, स्टार्ट होने के पहले ही छूट गया स्विच हाथ से, तो क्या होगा? इधर वन ऑपरेट हो गया टीडीआर, और तो टीडीआर वन ऑपरेट हो गया, स्टार्ट करने गए थे, उसको जब तक रीसेट नहीं करेंगे दोबारा स्टार्ट नहीं होगा। या शट डाउन करने गए, अचानक से क्या हुआ कि शट डाउन होते होते नहीं हुआ, फिर से स्टार्ट, तो फिर से शट डाउन तब तक नहीं कर पाएंगे स्टॉप बटन से जब तक ये रीसेट नहीं रीसेट करेंगे। सो ड्राइवर्स को इतना आदत लगा दिया गया है, इतना दे आर इन प्रैक्टिस की हो, जब भी स्टार्ट करना हो तो सबसे पहले आके रीसेट बटन को पुश करते हैं, तब स्टार्ट बटन पुश करते हैं। जब बंद करना हो रीसेट को पुश करने के बाद ही स्टॉप बटन को पुश करते हैं। सो दिस इज द पर्पस ऑफ रीसेट बटन। तो ऑल दीज बटन्स का पर्पस आपको समझ में आ गया? पुश बटन्स का, ब्रेकर्स का हमने बताया, सिंपली इसको ऑन कर देना है 24 वोल्ट का और 110 वोल्ट के ब्रेकर को, इसको भी बताया हमने। सिलेक्टर स्विच का क्या काम है, देन एक्सप्लेन करने के लिए दो चीज और रह गया। हाँ सर एक क्वेश्चन था। हेलो। हाँ बोलिए। सर बोल रहे हैं इसमें तो दो मोड रहता है ना, कि एक इलेक्ट्रिकल मोड और एक मैकेनिकल मोड। हाँ तो सर जब हाँ, ये मैकेनिकल एफएसडीबी में रहता है। वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ सर। सर तो सर मैकेनिकल मोड और इलेक्ट्रिकल मोड मतलब मैकेनिकल मोड में सर जैसे कि एलएलओपी कुछ भी होगा तो सर हाँ गाड़ी तो शट डाउन नहीं होगा। नहीं होगा, तो नहीं होगा। हाँ सर इस टाइम पे एक्चुअली क्या क्या होता है? करते हैं, ड्राइवर को ये बोला गया है कि एफएसडीबी का जो वाल्व है उसके ऊपर में एक छोटा सा स्क्रू है, वो हाँ सर। स्क्रू का एक ग्रुप बना हुआ है यहाँ पर, वो ग्रुप को आप इलेक्ट्रिकल मोड में रखिए या मैकेनिकल मोड में रखिए। व्हेन यू पुट दिस ग्रुप इलेक्ट्रिकल मोड में, इधर घुमा दिए स्क्रू को, तो ऑल सेफ्टीज विल बी ऑब्जर्व, जो भी सेफ्टी ऑपरेट होगा एफएसडीबी का सप्लाई कट जाएगा। अगर इसको आपने मैकेनिकल मोड में रखा हुआ है, इसको घुमा करके इधर, तो क्या होगा, कोई भी सेफ्टी ऑपरेट होगा तो एफएसडीबी का सप्लाई नहीं कटेगा, इंजन बंद नहीं होगा। ये कब करता है ड्राइवर? जब देखता है कि लो वाटर लेवल होकर के गाड़ी बंद हो रहा है, एलसीडब्ल्यूएल ऑपरेट हो रहा है, लो कूलिंग वाटर लेवल स्विच ऑपरेट हो रहा है,
लेकिन जाके देखता है कि हमारा टैंक जो है रेडिएटर रूम में उसमें पूरा पानी भरा हुआ है, पानी का कोई कमी नहीं है। ये फॉल्स इंडिकेशन दे रहा है। ये जब सैंग्विन हो जाता है ड्राइवर, देन ही कीप्स दिस FSDB screw in mechanical mode and works the demo. Is it clear? सर मतलब ये मतलब क्यों होता है ऐसा? जैसे कि इलेक्ट्रिकल माने मैकेनिकल मोड में सर माने एफएसडी का सप्लाई काट नहीं होता है, तो मतलब ये थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे मतलब क्यों होता है ऐसा? FSDB को, बाईपास ये स्क्रू को मैकेनिकल मोड में जब हम रखते हैं तो ये डायरेक्ट कनेक्शन देता है FSDB को। बीच में जो एक किसी भी सेफ्टी ऑपरेट होने से जो एक रिले। जगह था जहां से कनेक्शन कट सकता था, ओके सर। वो इसमें से बाईपास हो जाता है, एक डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है। ओके सर, थैंक यू सर। नाउ दिस इज दी आवर मीटर जो आप पीओएच में भेजेंगे। 18,000 घंटा हुआ कि नहीं, ये लाइफ टाइम आवर मीटर है। इसमें आवर कितना घंटा इंजन चला रिकॉर्ड होते रहता है। एंड दिस इज द टेकोमीटर जो किस नॉच पर इंजन है उसका आरपीएम बताता है। नाउ द इंजन इज एट आइडल, देखिए 708 आरपीएम बता रहा है। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल का अंदर में ये जो पैनल है, इसके जब दरवाजा खोलेंगे तो उसके अंदर में 10 ठो रिले होगा स्विच की तरह। R1 से लेके R13 तक 13 रिले, 13 रिलेज। आउट ऑफ दोस 13 रिलेज, R1 to R10 operates with 24 वोल्ट। 24 वोल्ट में R1 से R10 तक में 24 वोल्ट का सप्लाई है, और R11, R12, R13 में 110 वोल्ट का सप्लाई है। तो इस सबका पर्पस है, हर एक रिले का पर्पस है। See, these are the purpose of each and every relay. अभी इसका फोन आया था उसी समय प्लीज म्यूट। हाँ, कौशल कुमार जी, आपका स्पीकर ऑन रह गया और आप कहीं साइड टॉक कर रहे हैं। प्लीज म्यूट योर स्पीकर। कौशल कुमार, आप लोग में से कोई उनको अवेयर कर सकते हैं तो कोशिश करिए, मेरा तो सुन नहीं रहे हैं। म्यूट। बात होगी 12 बजे का टाइम, 12 बजे तुम लोग कितने बजे जाओगे? मुझे जल्दी जाना, कितने बजे? ज्यादा 10 बजे तक। प्लीज म्यूट। तुमको 12 बजे आने वाले थे भाई ना वो दिनेश सर, इनको बोलिए ना सर कि ये मतलब अपना अपना माइक बंद करें सर, आपका क्लास डिस्टर्ब होता है सर। हाँ, so now see these all 13 जो contactors है, rather they are relays type, they have got their purpose. R1 किस लिए है? This will be activated when the user selects remote station. आपने वहां देखा था ना,
एक सिलेक्टर था, वो सिलेक्टर दो जगह सिलेक्ट कर सकते थे, रिमोट या लोकल। तो आपने रिमोट अगर सिलेक्ट कर लिया, दिस विल बी पिक्ड अप नाउ। इसलिए ये पिकअप हो जाएगा कि अब रिमोट सिलेक्ट होने से अब आप ड्राइवर के कंट्रोल पैनल से इंजन को स्टार्ट कर सकते हैं। अगेन कौशल कुमार स्टार्टेड टॉकिंग। आई होप कौशल कुमार इज नॉट देयर, ही हैज made on the site and someone in his house is speaking. Now see the R2, R1 समझ में आ गया आपको? जैसे ही आपने सिलेक्ट किया रिमोट स्टेशन, मतलब ड्राइवर के कंट्रोल पैनल से स्टार्ट होगा इंजन और स्टॉप होगा, then R1 picks up. And if you select local station, then R2 will pick up, so that you can start and stop from engine control panel. Now the R3 का फंक्शन क्या है? It de-energizes FSDB, मतलब जब भी कोई सेफ्टी ऑपरेट होगा आपको R3 will pick up and FSDB will be de-energized and engine will shut down. R3 most important. Now R4 is a spare relay. If anyone from R1 to R10 gets defective, because these are 24 volt relays, then you can utilize R4 in its place. एक खराब हो गया तो R4 स्पेयर रखा हुआ है, R1 से R10 के बीच इसको यूज कर सकते हैं. Then there is a relay R5, it activates when the magnetic switch cranks the engine. Means once start button you have pushed, अब क्रैंकिंग होगा, तो जब तक क्रैंकिंग होगा ये R5 पिकअप किया रहेगा. R5 पिकअप किया रहेगा मतलब पिनियन थ्रो करेगा, प्यू कॉइल में सप्लाई जाएगा एंड देन होल्ड कॉइल में सप्लाई जाएगा and then cranking will start, and as long as the cranking takes place, then R5 is on. And जैसे ही क्रैंकिंग डिस्कनेक्ट होगा, क्रैंकिंग कंप्लीट हो गया, अब पिनियन को लौट के आना है, तो ये R5 ड्रॉप करेगा सबसे पहले. ये जैसे ड्रॉप करेगा आपका प्यू कॉइल का सप्लाई कट जाएगा, होल्ड कॉइल का सप्लाई कट जाएगा और इंजन अपने आप स्टार्ट हो जाएगा. क्रैंकिंग स्पीड मिल गया उसको. Then R6 activates when there is a low lube oil pressure fault. lube oil का प्रेशर कम हो गया, अब इंजन को बंद होना है. R6 भी ऑपरेट होगा, इसके साथ साथ R3 भी ऑपरेट होगा. कोई भी सेफ्टी ऑपरेट होगा उसके साथ R3 ऑपरेट होगा. देन FSDB जो है वो सप्लाई कट जाएगा और इंजन बंद. अगर हॉट इंजन हुआ तो R7 इसके साथ साथ फिर R3 दोनों साथ होगा. कोई भी सेफ्टी होगा तो R3 को ऑपरेट होना. लो कूलिंग वाटर लेवल, लो हाइड्रोलिक वाटर लेवल या हाइड्रोलिक वाटर फ्लो फॉल्ट. हाइड्रोलिक वाटर फ्लो फॉल्ट तब होता है कोई हाइड्रोलिक ऑयल का पाइप फट गया हो, चुक कर गया हो, कोई कॉक हाइड्रोलिक ऑयल का किसी ने बंद कर दिया हो, तो इंजन को बंद होना है. R8 एक्टिवेट होगा, साथ साथ में R3 भी एक्टिवेट होगा और दोनों मिलकर इंजन को बंद. R9 HWT2 फॉल्ट सिग्नल. HWT1 मतलब इंजन हॉट इंजन देगा, केवल एलईडी जलेगा और बजर बजेगा. HWT2 मतलब इंजन विल बिकम आइडल. और ज्यादा टेम्परेचर पर HWT2 होता है, इंजन आइडल हो जाएगा. इंजन को यहाँ बंद नहीं होना है, इंजन विल बिकम आइडल. सो HWT2 ऑपरेट होने पर R9 एक्टिवेट होगा और इंजन आइडल हो जाएगा. यहाँ भी हमने HWT1 जो ऑपरेट हुआ था, एक तो गलत बता दिया यहाँ पर. ये जो है ये एक्टिवेट हुआ जब, तो उसमें FSDB ऑपरेट नहीं होना है. HWT1 में इंजन को आइडल करना है. R7 ऑपरेट होगा, इंजन आइडल हो जाएगा. मतलब R7 जब भी पिकअप करेगा, R9 जब भी पिकअप करेगा, दे विल मेक द इंजन आइडल. R10 operates when magnetic pickup signal,
that signifies engine is running. इंजन जब रनिंग हो रहा है मतलब क्रैंकिंग डिस्कनेक्ट हो गया तो R10 पिकअप करेगा और ड्रॉप करेगा कौन सा R5। अब क्रैंकिंग नहीं होना, R5 ड्रॉप किया, R10 पिकअप कर जाएगा। नाउ इट सिग्निफाइज दैट इंजन इज रनिंग। द ग्रीन लाइट ऑन द एलईडी पैनल, annunciating panel will glow. Then there is R11. R11 जब आप stop button, हाँ रिमोट स्टेशन ड्राइवर का कंट्रोल पैनल का तब पैनल में तो ये R12 पिकअप कर जाता है। And R13 starts the station। जब रिमोट स्टेशन ड्राइवर के पास से, ड्राइवर के कंट्रोल पैनल से आप स्टार्ट बटन पुश करेंगे तो उस समय R13 पिकअप। स्विचेस, सर एक क्वेश्चन। ईसीसी का क्या काम है? हाँ सर बोलिए। सर लास्ट वाला स्लाइड। हाँ R13 नहीं सर, हॉट वाटर को R13 जो है नहीं सर, नहीं सर वो हॉट वाटर, हाँ 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 HWT जो है तो सर वो तो हॉट वाटर का दो कंडीशन है। एक है HWT1, हाँ सर, मतलब केवल इंडिकेशन देगा आपको ओके सर, एंड बजर बजेगा बट इंजन विल गेट पावर। ओके पावर नहीं मिलेगा। ओके ओके सर। सर टेम्परेचर कितना 93 96 सर 97 पर 96 HWT2 ऑपरेट होता है। 97 एज हम लोग 97 कहते गर्मी के दिनों में। 97 HWT2 ना, ओके सर। हाँ। और T1 के लिए सर और 90 पर जो है HWT1 हो जाता है। 90 T1 HWT1 90 पर 90 ओके नाउ फंक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल कार्ड हमने आपको कुछ बताया, कुछ बाकी है इसमें बताया, जो कि ये T1 और T2 के बारे में आपको हमने बता दिया था। ओवर स्पीड ट्रिप जो आपको दिखाए थे 2000 आरपीएम पर हो जाता है और वहीं से रीसेट होता है, तो ये ओवर स्पीड ट्रिप यहीं से एडजस्ट होता है ईसीसी कार्ड से। ये भी इसी का काम है। Now this ECC card ensures regulated power supply for all electronic components used in the control panel, and it ensures amplified output for all tachometers, जिसमें आपको आरपीएम बता रहा है इंजन का, and connected control panels of the loco at remote stations। ड्राइवर पैनल पर भी जो मीटर वगैरह लगा है उसमें भी एम्प्लीफिकेशन का काम करता है। और टाइमर का आपको पहले ही बता दिया, ओवर स्पीड ट्रिप बता दिए। Then it disconnects self starter once engine speed goes to 350 rpm। ये भी चर्चा हमने किया है। 350 rpm जब आ जाएगा, इंजन स्टार्ट होने लगेगा, तो क्रैंकिंग डिस्कनेक्ट विल बी अकम्प्लिश्ड एंड ईसीसी कॉन्टैक्ट्स जो है ये डिस्कनेक्ट कर देगा आपको, और पीयू का सप्लाई और होल्ड कॉइल का सप्लाई कट जाएगा और पिनियन वापस हो जाएगा। Audio visual annunciation of the ECC indicates various faults and conditions। से ऑडियो विजुअल इंडिकेशन यहाँ था आपको हमने ये ये अनाउंसिएटिंग पैनल है। ये डिफरेंट टाइप का आपका अनाउंसिएशन में डिफरेंट टाइप का एलईडी जलता है। इंजन स्टॉप लाल एलईडी जलेगा, इंजन स्टार्ट ग्रीन एलईडी जलेगा, लो लूप ऑयल हुआ कुछ और कलर होगा, हॉट इंजन हुआ कुछ और कलर होगा, डिफरेंट कलर्स का एलईडी जलेगा। इसको ऑपरेट करने का काम हमारा ईसीसी का है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल कार्ड। ये है आपका इंडिकेशन पैनल।
इसको बड़ा करके दिखाया गया है, जैसे 24 वोल्ट डीसी का सप्लाई आपको आ रहा है, ये एलईडी जलता रहेगा ग्रीन। लो लूबल प्रेशर होकर इंजन बंद हो गया तो ये एलईडी जलेगा इंजन बंद होने के पहले। हॉट इंजन का मतलब HWT1 इंडिकेशन एंड बजर बजेगा, एलईडी जलते हैं। एंड हॉट इंजन मींस हॉट वाटर T2, यहाँ आइडल हो जाएगा इंजन, ये वाला एलईडी जलेगा। उसके नीचे है LCWL, इंजन बंद हो जाएगा लो कूलिंग वाटर लेवल होने से, विद दिस एलईडी ऑन एंड बजर ऑन। देन लो हाइड्रोलिक ऑयल लेवल के लिए ये एलईडी है, हाइड्रोलिक ऑयल फ्लो फॉल्ट के लिए ये एलईडी है। देन OST ट्रिप करेगा तो ये वाला एलईडी जलेगा। इंजन इज रनिंग, ये ग्रीन एलईडी जलेगा। इंजन इज स्टॉप, ये रेड एलईडी जलेगा। एंड एनी टाइम जब भी बजर बजेगा तो ये एलईडी जलेगा। इसके अलावा ड्राइवर के सामने में भी अनंसिएटिंग पैनल है, इसमें भी उसको दिखाई पड़ेगा क्या हो रहा है नहीं हो रहा। सर एक क्वेश्चन था नहीं जाता है। हाँ हाँ सर, बोलिए। जैसे हॉट HWT1 ऑपरेट हुआ, जैसे तो उसकी इंडिकेशन तो बैक पैनल में आएगी, तो ड्राइवर को कैसे पता चलेगा? ड्राइवर को कैसे पता चलेगा? जी हॉट इंजन के लिए बजर भी बजेगा ना, ड्राइवर को सुनाई पड़ेगा। जैसे ही बजर सुनाई पड़ेगा वो और बजर तो पीछे बजेगा ना, इतना साउंड में उसको कैसे पता चलेगा? उसके सामने जो साउंड फ्रंट तो पैनल पता है चलेगा कि कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है, क्या हुआ है उसके लिए उसके सामने भी अनंसिएटिंग पैनल है, सामने भी जी, है उसका। वहां समझ में नहीं आया तो अंदर जाकर के देखेगा उस पर। ओके, राइट। और सर एक क्वेश्चन और था, जैसे HWT1 ऑपरेट होगा, वो उसमें खाली इंडिकेशन आएगा ना, और कुछ नहीं होगा? हाँ इंजन रन करता रहेगा वैसे ही। हाँ, और T2 ऑपरेट होने पर आइडल हो जाएगा, इंजन का एक्साइटेशन कटेगा, एक्साइटेशन कटेगा, इंजन आइडल हो जाएगा। इंजन आइडल हो जाएगा। राइट, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन है सर। हम्म। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर बोल रहे थे T1 में तो सर ओनली इंडिकेशन आएगा ना, तो सर उस समय तो हाँ, सेफ्टी रिले पिकअप नहीं होगा आई थिंक। सेफ्टी सेफ्टी रिले सेफ्टी रिले तो ऑन होगा ना, बजर जो बजेगा। सर एक्चुअली तब तो एक्साइटेशन कट हो जाएगा। नहीं, कट नहीं होगा अभी। अभी टेम्परेचर 97 होगा, उसके बाद एक्साइटेशन कट होगा। अच्छा सर, सेफ्टी रिले के साथ एक्साइटेशन मतलब सेफ्टी रिले अगर कट होगा तो एक्साइटेशन सेफ्टी रिले कभी भी किसी भी वजह से बजर बजेगा तो सेफ्टी रिले ऑन होगा। इट इज फॉर बजर। ओके ओके सर, ओके सर, ओके सर। नाउ इसको स्टॉप करते हैं और अब शेयर करते हैं कंट्रोल वाला वीडियो। तो पहले हम इसको खोल लें अपना। ये दिख रहा है आपको? सर देख रहे हैं। यस सर। यस सर। If it is visible, let us discuss कि there are 8
notches in demo, मतलब 8 स्पीड आपके पास है, and each notch has a specified engine RPM. Now control module अब नहीं है किसी में ELC, अभी केवल LCC है. LCC runs the actuator current. जो PT पंप हमने आपको बताया जो FSTP होकर के नोजल में जा रहा है इंजेक्टर में, एक्चुएटर यूनिट के थ्रू. एक्चुएटर यूनिट इज लाइक ए गवर्नर इन लोकोमोटिव. इसमें सप्लाई बढ़ाने से, इसके वोल्टेज बढ़ाने से, एंड सप्लाई बढ़ाते हैं मतलब इसमें वोल्टेज ज्यादा दे देते हैं, लो सप्लाई को विथड्रॉ कर लेते हैं. दैट इज द एक्चुएटर यूनिट. सो दिस एक्चुएटर यूनिट को कौन कंट्रोल करता है? दिस LCC. LCC का बड़ा वाला कार्ड एंड इंजन RPM सेट करता है. नाउ RPM आइडल में 700, नॉच 1 में 700, notch 2 it is 1000, notch 3 it is 1200, and notch 8 it is 1800. Now see there is some limit. Sometimes you see your engine is running on, ये आपका एक्साइटेशन का जब आप प्लॉट करते हैं ना कर्व, कुछ इस तरह का कर्व होता है. This line, this is your I limit line. इधर I है, इधर B. Then you go to this constant B line, and then come to this kilowatt line, which constant V limit. So ये दिया जाए कि V लिमिट में स्पीड क्या होगा, I लिमिट में हर एक नॉच में ऐसा दिखाया गया है. यदि I लिमिट में चल रहा है तो नॉच में sometimes you are on I limit, sometimes on V limit, and sometimes on kilowatt. This is the power say actually control circuit and power circuit, पूरा control circuit है. Now this alternator is generating AC. ये रेक्टिफायर को दिया होती. नाउ ये कितना AC बनाया है रेक्टिफायर को देने के पहले, current transformer and feed back to the LCC, which is load control card. LCC, ये LCC क्या करते हैं, इसको करंट का फीडबैक देगा, एंड एक वोल्टेज फीडबैक के लिए है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर PT. एक है CT, एक है PT. तो वोल्टेज फीडबैक विल गो फ्रॉम दिस पोटेंशियल ट्रांसफार्मर. ये PT है, यहां से वोल्टेज फीडबैक आएगा. ये इसको जब वोल्टेज करंट का फीडबैक मिलेगा, एंड मोटर का क्या रिक्वायरमेंट है, बेस्ड ऑन दैट it will control the excitation of the traction alternator also. मैग्नेटिक पिकअप यूनिट को कंट्रोल करेगा, इंजन स्पीड को कंट्रोल करने के लिए एक्चुएटर यूनिट को, सॉरी एक्चुएटर यूनिट को कंट्रोल करेगा स्पीड की. इट विल कंट्रोल इंजन थ्रू एक्चुएटर. मैग्नेटिक फीडबैक ले रहा है, CT और PT से फीडबैक लेता है CT. And depending upon that feedback, इसको 110 वोल्ट का सप्लाई भी मिल रहा है. From that 110 volt, it will give some voltage to the exciter
बोर्ड थ्रू ड्रॉपर रेजिस्टेंस देगा, उतना ही सप्लाई देगा जितना एक्साइटेशन की यहाँ जरूरत है। सो इन दिस वे द कंट्रोलिंग इज डन हियर। इसको और क्लियर समझेंगे हम लोग, समय कम है। ये पावर सर्किट है, सिंपल पावर सर्किट है। देखिए यहाँ क्या है, ये आप जो देख रहे हैं ये एक्साइटर का फील्ड है। दिस वन इज फील्ड ऑफ द एक्साइटर, सो एक्साइटर फील्ड में ये आर्मेचर है एक्साइटर। नाउ दिस एसी व्हाइल रोटेटिंग, ये रोटेटिंग रेक्टिफायर ये डीसी बना लिया है, और ये डीसी सप्लाई क्या किया, ये मैग्नेट, ये जो मेन अल्टरनेटर का फील्ड है इसको दे देगा, जो है वो सप्लाई बनाना शुरू करेगा। 3 फेज एसी, इस 3 फेज एसी विल बी कन्वर्टेड इनटू डीसी। ये जो डीसी आया, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव सप्लाई एंड दिस इज नेगेटिव। में आपका ये L1, L2, L3, L4 ये है पावर कंडक्टर्स, इंडक्शन मोटर के आर्मेचर में सप्लाई जा रहा है। और नेगेटिव साइड से देखिए रिवर्सर से होते हुए, लोड अमीटर शंट से होते हुए मोटर आर्मेचर को सप्लाई जा रहा है। सो पैरेलल में, शुरू से अंत तक पैरेलल में कनेक्टेड है चारों मोटर इस आर्मेचर के साथ। अनलाइक दी अल्को लोको और जीएम लोको नहीं, जीएम में तो ट्रांजिशन नहीं है, अल्को लोको में ट्रांजिशन है। शुरू में सीरीज पैरेलल में लगा होता है और ट्रांजिशन के बाद पैरेलल होता है, लेकिन इसमें शुरू से ही पैरेलल में लगा हुआ रहता है डेमो चारों मोटर। नाउ हम और डिटेल में ना जाकर के इसमें एक, ये सारा आपके सुविधा के लिए दे दिया गया है, कौन सा स्विच है क्या है, सारे कंपोनेंट्स डिस्कस किया गया डिटेल में, पढ़ लेंगे। बस मैं एक स्लाइड को डिस्कस करूंगा कि कैसे स्पीड कंट्रोल और वोल्टेज एक्साइटेशन जो है उसको कैसे कंट्रोल। ये देखिए ये 1400 HP का रिवर्स कंट्रोल पैनल, आपको वो 700 का दिख रहा है। ये रिवर्सल हैंडल है एंड दिस इज दी थ्रॉटल हैंडल, ये 1600 का है। ये मास्टर कंट्रोलर 1400। तो समझ लें तो आप पूरा कंप्लीट सर्किट समझ गए, और 5 मिनट लगेगा इसको समझने में। सिर्फ दिखाई पड़ रहा है, इज इट विजिबल टू यू? Yes, sir. It is visible. Yes, sir. Now see, this card, this module is meant for speed control and this is meant for excitation card. दो कार्ड कैसे होता है देखिए, यहाँ देखिए ये जो दो तार आप देख रहे हैं, यहाँ से 24 वोल्ट का सप्लाई आया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यहाँ पर जो चार तार आप देख रहे हैं, पोल। सो ये जो दो करंट फीडबैक आया है सीटी से, सीटीपीटी का कनेक्शन यहाँ है। ये जो एक लाल और एक येलो केबल आप देख रहे हैं, वो सेम लाल और येलो केबल यहाँ पर है, तो ये पीछे से लूप करके यहाँ पर आया गया है। अगर कंटिन्यूटी मीटर लगाएंगे आप, दिस रेड इज कंटिन्यूअस विद दिस रेड, दिस येलो इज कंटिन्यूअस विद दिस येलो, मींस these two wires and these two wires are same. Is it clear to you? अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर चार तार आप देख रहे हैं, जिसमें यहाँ ये जो दो तार है इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सप्लाई आया है 110 वोल्ट का, और इसके बगल में जो दो तार देख रहे हैं ये एक्साइटर के फील्ड में जा रहा है, एक पॉजिटिव जाएगा एक नेगेटिव जाएगा, एक्साइटर के फील्ड। परिचय कर ले पहले केबल से, केबल सब जान जाएंगे तो इसका कंट्रोल क्या है। फिर देखिए यहाँ पर देखिए कितने केबल्स हैं, 1 2 3 4, एक ये एक्स्ट्रा है 5, 1 इज नेगेटिव एंड 4 आर पॉजिटिव।
ये नेगेटिव सबके साथ कॉमन है। ये स्पीड कॉम्बिनेशन के लिए है। जैसे एबीसीडी सोलिनॉइड होता है गवर्नर में, यहाँ पर सोलिनॉइड तो है ना, यहाँ केबल्स है। गवर्नर में क्या होता है, पीजी गवर्नर में, एल्कोलोको में, या उसमें क्या होता है, ये सोलिनॉइड होता है। जैसे ये सोलिनॉइड आपने ऑन कर दिया है, तो जैसे जैसे आइडल में या फर्स्ट नॉच में कोई सोलिनॉइड में सप्लाई नहीं जाता है। सेकंड नॉच में ए सोलिनॉइड में सप्लाई जाता है, थर्ड नॉच में बी में सप्लाई जाता है, फोर्थ नॉच में सी में सप्लाई जाता है, फिफ्थ नॉच में सी के साथ साथ ए में भी सप्लाई जाता है, में सप्लाई जाता है। सेवेंथ नॉच में ए सी डी होता है और एट नॉच में बी सी डी होता है। ऐसे कॉम्बिनेशन बन करके आरपीएम के लिए सप्लाई जाता है उसमें। यहाँ पर क्या हमारे पास एबीसीडी सॉलिड, तो यदि हमको फर्स्ट नॉच सर वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है तो हम इसमें से कोई भी सब में ए सॉलिनॉइड को जैसे करना, तो सेकंड नॉच में बोलिए। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। तो ये नॉच वाइज स्पीड को फिक्स करने के लिए ये चार तार, एक तार है, तो ये तार एक सप्लाई होगा। तो ये जाएगा सप्लाई कहाँ, एक्चुएटर में जाएगा। यहां से कॉम्बिनेशन बनेगा, ये दो तार यहां से, दो तार यहां पर ऐसा है पॉजिटिव और नेगेटिव, जो 24 वोल्ट सप्लाई यहां भी आया हुआ है। अकॉर्डिंग टू लोड एक्चुएटर में यहां से सप्लाई जाएगा। सटेगा कब, जब लोड बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ जाएगा, लोड घटेगा तो सप्लाई वोल्टेज कम हो जाएगा। वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एक्चुएटर विल गिव मोर फ्यूल, एंड वोल्टेज घटाएंगे तो एक्चुएटर विल गिव लेस फ्यूल। बाय दिस it will maintain the constant rpm at any fixed notch. Is it clear how it is controlling the 8 different speeds irrespective of load? Now if speed control is clear, then come to the excitation control. Excitation control में आपने देखा यहाँ पर ये दो केबल जो है, ये दो केबल सेम, तो क्या होगा, यहाँ पर जैसे आपको इनपुट मिलता है सीटी से, अकॉर्डिंग टू दैट इनपुट क्या हमारा रिक्वायरमेंट है वो पता चल जाता है। तो ये है, यहां से एक सिग्नल आता है, एक्साइटेशन सिग्नल, यहां आया जैसे सिग्नल। नाउ यहां पर आपका जो 110 वोल्ट है, जैसा सिग्नल यहां पर आया उसके अनुसार 110 में से कुछ वोल्टेज निकाल करके प्रोपोर्शनेटली इस दोनों केबल से हम भेज देते हैं एक्साइटर के फील्ड। मतलब जो रिक्वायरमेंट है वो सीटीपीटी से यहाँ फीडबैक आ जाता है, और उस फीडबैक के अनुसार यहाँ से हम सिग्नल देते हैं, और ये सिग्नल जो है ये बता देता है कि इस 110 में से कितना वोल्टेज एक्साइटर सर्किट को मिलता है। अकॉर्डिंगली एक्साइटर के फील्ड को एक्साइट करते हैं, उस तरह से एक्साइटर 3 फेज एसी बनाता है, उसको फिर हम डीसी बना करके रेक्टिफायर से फिर मेन अल्टरनेटर के फील्ड को देते हैं। इन दिस वे वी कंट्रोल द मेन अल्टरनेटर फील्ड एक्साइटेशन। So this LCC is giving you 8 different speeds and 8 different power levels also. Is it clear? डेमो का कंट्रोल का मेन मुद्दा यही है, एलसीसी। एलसीसी पर ही सारा कंट्रोल है। अब एलसीसी में जब जैसे चलेगा, ये नॉच वाइज आपको ये एलईडी जलेगा, किस नॉच पर है एलईडी बताएगा। यहाँ बताए थे कि आपका ओएसटी होने से यहाँ जलेगा। देन डिफरेंट टाइप का ये है, जैसे एलईडीज है जो इंडिकेट करता है कि किस पर चल रहा है। ये वाला एलईडी जलेगा मतलब आप वोल्टेज रैंप पर है। बोले थे ना कि कभी वोल्टेज लिमिट पे चलना होगा, कभी करंट लिमिट पे चलना होगा, कभी किलोवाट लिमिट पे चलना होगा। तो ये सब एलईडी जल करके बताएगा कि आप किस लिमिट पर चल रहे हैं। सो दिस इज ए वेरी एडवांस थिंग जो लोकोमोटिव्स में नहीं है, नॉट इवन योर GM लोकोमोटिव्स। और इतना बड़ा बड़ा एक्साइटेशन पैनल और ये गवर्नर वो गवर्नर लगाया, वो सारा चीज ये 2 कार्ड में कर लिया है। एनी क्वेश्चन टिल नाउ?
और डिटेल्स के लिए आपको मैंने वो दे दिया है, स्लाइड पूरा लोड कर दिया हूँ आपका वहाँ बिग ब्लू बटन में, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। If there is no question, I will just stop the class. 4:30 बजे तक तो था ही क्लास, थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन हो तो पूछिए, मैं चर्चा करूँ। इसके बाद एक और क्लास मेरा रह जाता है, 16 से डेमो पर वो कल होगा, फर्स्ट क्लास। डीएमई मालदा, सीनियर डीएमई मालदा है क्या तिवारी सर? एनी क्वेश्चन? आई एम ओवर हियर। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तभी इसको बंद कर दूंगा। तिवारी सर हैं क्या सीनियर डीएमई मालदा? Okay. Good day then. ओके सर।